السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، آج ہم ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں کیا کیا چیزیں شامل ہے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے، اس سب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا یا آلود ہونا ہے۔ گرد و پیش سے مراد ہے آس پاس یا ارد گرد۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا یا آلودہ ہونا ہے۔ جو ہمارے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، جب وہ گندا ہوتا ہے تو وہ گندگی ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ انسان کے گرد و پیش، خواہ پانی ہو یا ہوا، فضا یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انسان کے گرد و پیش، چاہے اس میں پانی شامل ہو، ہوا شامل ہو، فضا یا زندگی کے دوسرے سامان ہو، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ غلاظت کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، اور یہ چیزیں جب آلودہ ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کے لیے اجیرن بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ان میں پانی، غذا اور ہوا اہم ہیں۔ اگر یہ چیزیں آلودہ ہوں گی تو اس کا بہت ہی برا اثر ہماری زندگی، ہماری صحت پہ پڑے گا۔ اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ جو کرۂ ارض ہے، کرۂ ارض سے مراد ہے زمین، اور زمین پر جو انسان ہے، جو حیوانات ہے، یا جنہوں نے زندگی پائی ہے، ان کا جینا دوبر ہو جائے گا، جو خود ایک شفاف ماحول کی زائدہ ہے۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے وہ انمول تحفے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ وہ تحفے ہیں جن کا کوئی مول نہیں دیا جا سکتا۔ زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اسے صاف و شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر پانی، غذا یا ہوا وغیرہ صاف نہ ہو تو ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہماری موت پھر اٹل ہے۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جو قدرتی ماحول ہے، اس کا تناسب قائم رکھنے کے لیے گیسوں کا بھی بہت ہی بڑا ہاتھ ہے۔ جو مختلف گیسیں ہیں، نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے، اور جو نباتات ہے اور جو سورج کی حرارت ہے، ان کے درمیان بھی ایک خاص تناسب ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اور اگر ان کے درمیان تناسب بگڑ گیا تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انسان بہت ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل انسان ہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات کے درجے سے اس کو نوازا ہے۔ ہی از دا کراؤن آف آل کریشنز، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے وہ حرکتیں سرزد ہو جاتی ہے جن سے پوری انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑے اور صنعتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے۔ آج بڑے اور صنعتی شہروں میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت ہے، یعنی کثافت زیادتی کو کہتے ہیں۔ جو فیکٹریاں
ज़्यादा धुआं और जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा जहरीली गैसें जो हैं वो खारिज करती हैं और इनकी कसाबत से, उनकी ज़्यादती से नुकसान पहुंचा है। जहां एक तरफ धुएं की कसाबत के सबब सांस में आदमी तवाज़ुन और आंखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, वहीं दूसरी जहरीली गैसों की वजह से नहायत खतरनाक और हलाकत खेज बीमारियां आम होने लगती है। और जहां एक तरफ धुएं की जो कसाबत है, इसकी ज़्यादती है, इसके सबब हम सांस नहीं ले सकते और हमारी आंखों में जलन पैदा हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जहरीली गैसें जो हवा में खारिज हो जाती हैं, इनसे खतरनाक और हलाकत खेज बीमारियां जन्म ले चुकी हैं। सन्नती शहरों में, सन्नती शहर से मुराद है जहाँ पे वो शहर जहाँ बड़े पैमाने पर कारखाने लगे हों। सन्नती शहरों में कारखानों के धुएं और उनके फुजलात से आबादी के अतराफो जवानिब मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। मसमूम यानी जहर मिला हुआ। जो भी आबादियाँ हैं जहाँ पे सन्नती शहर है और इनके इर्द गिर्द जितनी भी आबादियाँ हैं वो सारी की सारी आबादियाँ मुतासिर हो गई हैं। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, और दूसरी तरफ जो हमारे जंगलात है वो माहौल को साफ रखने में एक अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर उनकी कटाई जारी है, इससे माहौलियात के लिए मजीद खतरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी है, जंगलात जो है वो बारिश के लिए ज़रूरी है। जब जंगल होते हैं तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो इवापोरेशन होती है और जो साइकिल जो चलता है, उस साइकिल की वजह से क्या होता है कि ज़मीन से उठने वाला पानी भाप की शक्ल में जब पैदा होकर खारिज हो जाता है तो वही बाद में बादल बनकर फिर ज़मीन पे बरसता है, और इसमें अहम किरदार जो निभाते हैं वो हमारे दरख्त है, वो हमारी जंगलात है, या मट्टी के कटाव को रोकने में माविन साबित होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे जंगलात, हमारे दरख्त जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने में बहुत ही माविन साबित होते हैं, क्योंकि जो जड़ ज़मीन के अंदर किसी दरख्त के निकलते हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है। खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। अब ये जंगलात हमारे मुल्क के नक्शे से गायब जैसे होते जा रहे हैं, और इसका बराह रास्त नतीजा यह है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वक्त पर बारिश होती थी और वक्त पर धूप निकलती थी, अब इनमें कोई तवाज़ुन नहीं है, और मट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदरों में जम होता जा रहा है। और जो मट्टी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ज़मीन पर अब दरख्त नापेद है, दरख्त ख़त्म हो चुके हैं, दरख्तों का कहीं नामो निशान नहीं है, और वो मिट्टी खिसक कर पानी के साथ बड़े दरियाओं में और समंदरों में जम हो चुका है। सैलाब से हर साल मुल्क को सख्त नुकसान उठाना पड़ता है, और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद ज़रूरी है। जो जंगलात है वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं। फजला की जमा है यानी पाखाना वगैरह। फजलात और दूसरे मुज़िर केमिकल्स के अखराज से पानी की आलूदगी में रोज़ अफजूं इजाफा हो रहा है। जो फजलात या दूसरे मुज़िर जो केमिकल्स है, उनके अखराज से, उनके खारिज होने से पानी आलूदा होता है। कल्बी अमराज अब इन सन्नती शहरों के बासियों का मुकद्दर बनते जा रहे हैं। जो बासी है यानी उन शहरों के रहने वाले जो लोग हैं, अब उनके कल्बी इमराज में हद दर्जा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के माबैन जंगो जदल की सूरत में बेतहाशा बारूद और दूसरे कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को बराह रास्त खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि इसके दूररस नताइज के तौर पर आबो हवा और फ़ज़ा की दूसरी मवाफ़िक सूरत हाल पर भी मनफी और ख़तरनाक असर पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो है बड़े बड़े ताकतवर जो ममालिक है, इनके माबैन जंग, उनके दरमियान जंग, और जंग में जो वो बड़े बड़े कीमियाई हथियार इस्तेमाल करते हैं, इससे भी ज़िंदगी को बराह रास्त खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि इसके दूररस नताइज के तौर पर आबो हवा भी और फ़ज़ा की दूसरी मवाफ़िक सूरत हाल पर भी मनफी और ख़तरनाक असर पड़ रहा है। और नतीजतन ज़िंदगी के लिए
तूलुल मुद्दती खतरात व खदशात पैदा हो रहे हैं, और वो खतरात और खदशात पैदा हो रहे हैं जिनका कोई बाद में सद्भाव नहीं कर सकता। इन्हीं खतरात व खदशात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से वक्तन फ़वक्तन एटमी असलाजात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है। आपने सुना होगा CTBT यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको कहते हैं कि जो न्यूक्लियरी हथियार है उन पर बैन लगाई गई ताकि मुल्क में एक तो जंग न हो जाए और दूसरे इसके जो मुज़िर असरात है और इन मुज़िर असरात से तमाम आलमी इंसानियत को बचाया जाए। ताकि इन्हीं खतरात व खदशात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से वक्तन फ़वक्तन एटमी असलाजात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है ताकि दुनिया को एटमी कसाफत और इसके दूसरे मुहलिक नताइज से महफूज रखा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात के तईं आम बेदारी पैदा करने के लिए 5 जून को यौम आलमी माहौलियात मुकर्रर किया है। आप जानते होंगे, आपने स्कूल में भी ये दिन मनाया होगा जो 5 जून को होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन पर हम माहौलियाती आलूगी पे बात करते हैं, माहौलियात को साफ रखने की सिफारिशें करते हैं, अपनी सलाह देते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक इस ज़िम्न में अपने अवाम को अवजानो गैस की दिन ब दिन कम होती जा रही परत के खतरे से मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाह कर रहे हैं, और जो गैस है ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है और इसके मनफी नताइज बाद में बरामद पैदा हो सकते हैं। इस लिहाज से भी हम लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन अब भी आम बेदारी ज़ुमरे में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है। दुनिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट या खिला में ब्लैक होल के बारे में मालूमात फराहम करने की सख्त ज़रूरत है, और दुनिया को जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हमारा ग्रीन हाउस है, जो इस पे इफेक्ट हो रहा है, जो इस पे असर हो रहा है, जिन चीज़ों से ये मुतासिर हो रहा है, या खिला में जो ब्लैक होल पैदा हुआ है, और ब्लैक होल के कारण ही ये तमाम तबाही जो दुनिया में इस वक्त हो रही है, वक्त पे बारिश नहीं होती, धूप बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, ये इन्हीं चीज़ों के कारण हैं। हिंदुस्तान में माहौलियात की तालीम को कॉलेज सतह के साथ साथ बुनियादी सतह से ही लाजमी करार दिया जा रहा है। जो माहौलियाती तालीम है कि हम अपने माहौल को किस तरह बचाएंगे, अब ये बुनियादी सतह के साथ साथ कॉलेज सतह पर भी लाजमी करार दिया गया है ताकि लोगों में साइंसी बेदारी और रुझान की हर सतह पर फ़रोग दिया जाए। माहौलियाती आलूदगी से दुनिया को महफूज रखने के लिए आलमी बैंक हर सतह पर अक़वाम आलम को इमदाद फराहम कर रहा है। जो अक़वाम आलम का बैंक है, माहौलियाती आलूदगी से दुनिया को महफूज रखने के लिए जो आलमी बैंक है, वो हर सतह पे अक़वाम आलम को इमदाद फराहम कर रहा है ताकि लोगों को माहौलियाती आलूदगी के बारे में बेदारी या जो मालूमात है वो फराहम किए जाएं कि वो मुस्तकबिल की फिक्र करके दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखें, वरना खुद इंसानों का वजूद भी इसी तरह सफाई हस्ती से मिट जाएगा जिस तरह कबील बहसा और देव हेकल डायनासॉर का वजूद दुनिया से मिट गया, और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जानवर है जो दुनिया में कभी हुआ करते थे और उनका वजूद ही फना हो चुका है, वो सिरे से ही ख़त्म हो गए हैं। और इसी तरह अल्लाह बचाए, एक वक्त वो भी आएगा जब इंसान का वजूद भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और इंसान का कहीं नामो निशान नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारा जो माहौल है हम इसको साफ रखें, हम इसको पाक रखें। जिन चीज़ों से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है हम इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। ये जो बहुत ही खूबसूरत मजमून है मालूमात की सूरत में, ये माखूज़ अज़ मख़ज़नी मज़ामीन जो मुरत्तिब डॉक्टर जौहर कुदूसी है उन्होंने तरतीब दिया है, उन्हें इसी से माखूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो YouTube पे मेरी चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी सिनफ के हवाले से, फिर किसी मजमून के हवाले से आपके सामने ज़रूर
حاضر ہو جائیں گے جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔